Good morning, student. Welcome you all. So today we are going to start the part second of the chapter number 9, that is the Bond of Love, written by Kenneth Anderson. So basically, in the part 1, we will discuss about so many things about a sloth bear. So sloth bear is an orphan bear. Its parents is already died, and it's rescued by the author, and it's take care by the author's wife, and we will also saw the affection between the author's wife and the sloth bear. So basically in the first part we will see ki sloth bear at everything, whatever is front of him, he ate anything or everything, right? Like veggies ho, chahe wo porridge ho, fruits ho, nuts ho, pork, especially pork, he loves pork too much, and breads and chilies and curry, etc, etc, he ate everything. And he loved by everyone in the author's house, especially his wife. So, today we will begin the second part of this chapter, the bond of love. Let's start. Seventh point, or the seventh paragraph, the bear became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. So basically, जो वो bear था वो सबसे attached हो गया था, जो उनके घर पे यानी जो ऑथर के घर पे ऑलरेडी दो एल्सियन डॉग्स थे, वो उनसे भी काफ़ी अटैच हो गया था, और जो भी उनके आसपास यानी उनके जो नेबर्स के बच्चे थे बंगलो में, वो उनसे भी काफ़ी अटैच्ड हो गया था. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our bed. So जब भी वो फ्री होते थे यंगर डेज में तो वो उसके साथ स्पेंड टाइम करता था, वो खेलता था, रन करता था, किचन में भागता था और उनके साथ बेड पर सोता था. One day an accident befell him. Befell means happened. So one day an accident was happened with him. I put down poison barium carbonate to kill the rat. So I here refer to the author. So author actually put down the poison, and the poison was barium carbonate to kill the rats and mice that had got into my library. So here author says to us कि उनकी लाइब्रेरी में क्या हो गया था, रैट्स और माइस हो गए थे, तो उन्होंने टू किल देम ही जस्ट पुट द बैरियम कार्बोनेट, द पॉइजन, वहाँ पे लाइब्रेरी में रखा. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. So, what I have told you at the starting time, कि Bruno ate everything, whatever is front of him. He ate everything. So, in a similar way, उसने क्या करा, जब वो यूजुअली जैसे लाइब्रेरी में वो जाता ही था, तो लाइब्रेरी में उसने क्या देखा, बेरियम कार्बोनेट देखा, एंड ही एट दैट ऑल्सो, उसने वो भी खा लिया. सो पैरालिसिस मीन्स लॉस ऑफ पावर टू मूव, राइट? जब हम मूवमेंट नहीं कर पाते तो उसको हम पैरालाइज होना कहते हैं. सो पैरालाइज सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट. सो अब क्या हुआ, उसके साइड इफेक्ट्स हुए. जैसे ही उसने बेरियम कार्बोनेट, जो पॉइजन था, जो रेड्स और माइस को मारने के लिए रखा गया था, उसने खा लिया, तो उसको क्या हो गया, पैरालाइज हो गया, एंड ही कांट मूव, and it couldn't move. But he dragged himself on his stumps to my wife. But somehow he dragged himself to his stump. कहाँ तक वो गया अपने, कहाँ तक, उसकी वाइफ तक, मीन्स ऑथर वाइफ तक वो somehow पहुँच गया. Who called me? I guessed, जो अब ऑथर की वाइफ ने उसको कॉल किया, I guessed what had happened. So उसने अज्यूम कर लिया था, अजम्पशन लगा लिया कि शायद क्या हो गया होगा, कि जब उसने ऐसा कुछ कर लिया. सो अब आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस. तो वो जल्दी से फास्टली कहाँ गए, वेट मीन्स वेटरनरी डॉक्टर को, जो एनिमल डॉक्टर है उसके पास गए, उनके रेजिडेंस पे गए. अ केस ऑफ पॉइजनिंग, टैम बियर, टैम मीन्स अ पैट बियर, राइट? बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू. तो उन्होंने क्या कहा कि एक पॉइजन का केस है, एक टैम बियर, एक पेट बियर है, उसने जो बेरियम कार्बोनेट है, मीन्स बेसिकली he asked कि what is the treatment given to the animal when animal consumed the barium carbonate or the poison. Out came his medical books, and a feverish reference to index began. So, what poison did you say
बैरियम कार्बोनेट. सो बेसिकली जो वेटरनरी डॉक्टर था उसने अपनी मेडिकल बुक्स निकाली टू सी कि व्हेन सम एनिमल कंज्यूम बेरियम कार्बोनेट देन व्हाट वाज द रीजन टू गेट रिड ऑफ दिस, राइट. तो वो अपनी बुक्स मेडिकल की बुक्स निकालने लगता है. एंड बेरियम कार्बोनेट, yes, barium salts, बेरियम कार्बोनेट, सिम्टम्स, पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ जस्ट अ मिनट सर. सो ये सब चीज़ें पढ़ रहा था, देख रहा था. एंड ही सेड कि जस्ट अ मिनट सर, उसने ऑथर से कहा आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन. उसने कहा कि मैं अपनी सिरिंज और मेडिसिन लेकर आता हूँ, देन विल सी कि व्हाट विल डू विद दिस. अ डैश बैक टू द कार. वो वापस कार में गए. ब्रूनो स्टिल फ्लॉन्डरिंग. फ्लॉन्डरिंग मीन्स स्ट्रगलिंग टू मूव, मतलब अभी भी वो प्रॉब्लम में था, उसको ठीक नहीं हुआ था. अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, मतलब देखा जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, क्विकली वीक हो रहा है. सम वॉमिटिंग, हैवी ब्रीथिंग विद हैवी फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ. सो फ्लैंक्स हैविंग मीन्स टेकिंग डीप ब्रेथ. तो बेसिकली he was taking deep breath and वो वॉमिटिंग भी कर रहा था. एंड फ्लैंक मीन्स साइड बॉडी, जो बिटवीन रिब्स और हिप्स के बीच की जो बॉडी होती है, फ्लैंक्स कर रही थी. एंड गैपिंग माउथ. गैपिंग माउथ मीन वाइड माउथ करके वो ऐसे सांस ले रहा था. और वी कैन ईजिली सी द रिब्स and hips. So basically this gonna happen to him. और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था. Who? Bruno. Bruno the sloth bear. Hold him everybody. So the doctor said to कि please hold him. In goes to the hypodermic. Bruno squeals. So hypodermic means a long needle used to give an injection under the skin. एक long needle तो basically injection होता है जो अंदर syringe के थ्रू डाला जाता है. Squeals means scream. See, अगर कोई भी hypodermic या syringe हमको लगती है तो ऑटोमेटिकली भी स्क्रीम. तो जो ब्रूनो है वो भी स्क्रीम करता है, चिल्लाता है. 10 cc ऑफ द एंटीडोट. सो एंटीडोट मीन्स जो हमारा एंटी पॉइजन है वो उसको दिया जा रहा था. तो एंटीडोट मिली. एंटर्स हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड. जो 10 cc का इंजेक्शन होता है तो कहता है कि विदाउट अ सिंगल ड्रॉप वेस्टिंग उसको पूरा देना है. 10 minutes later condition unchanged, but after the 10 minutes condition was not changed. So another 10 cc injected. तो they thought कि एक और 10 cc इंजेक्ट उसको देना पड़ेगा. 10 minutes later breathing less, stereos Bruno. Stereos breathing, noisily breathing as in snoring. जैसे स्नोर करते हैं ना वैसे जोर जोर से वो ब्रीथ कर रहा था. Bruno can move his arms and legs a little although he cannot stand yet. See, now he's starting some movement. उसने arms and legs को start किया but he couldn't stand. 30 minutes later means after the 30 minutes Bruno gets up and has a great feel. वापस उठा, बिल्कुल ठीक हो गया था. He looks at us disdainful. Disdain means disapprovingly उसने अपनी तरफ उनकी तरफ देखा. As much as to say what's barium carbonate to a big black bear like me. Bruno is still eating. So वो कह रहे हैं जैसे मान लो पूछ रहा हो कि मेरे जैसे ब्लैक बियर को भी एक जो बेरियम कार्बोनेट है वो ऐसी हार्म पहुंचा सकता है. So Bruno is still eating but Bruno अभी भी कुछ खा रहा था. तो now he is better. Another time he found nearly 1 gallon of old engine. तो भाई क्या कहा था कि वो कुछ भी खा सकता था, वो कुछ भी पी सकता था. सो फर्स्ट थिंग जो बेरियम कार्बोनेट उसने लिया उससे तो वो बड़ी मुश्किल से निकल गया. अब another incident was happened with him. Let's see what was that. Another time he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker, an old American car, and was keeping as a weapon against the inroads and termites. So basically क्या कहा था ऑथर ने कि जो उनकी स्टूडबेकर जो कार थी, अमेरिकन ओल्ड कार थी, उसमें उनको सम्प करना था, मीन्स ऑयल डालना था उनके इंजन को अच्छे से रन करने के लिए. तो उन्होंने क्या कहा और उसको एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन, और उसको वो एक एज अ वेपन यूज़ करने वाले थे जो टर्मिट्स को मारने को, जो रोड्स पे टर्मिट्स हो गए थे उनको मारने के लिए वो एज अ वेपन उसको यूज़ करने वाले थे. बट ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट. बट जो 1 गैलन के अराउंड ही ड्रैंक द ऑयल. हु? Bruno means the sloth bear, but it had no ill effects whatever. But thank God nothing was happened with him after drank the 1 gallon oil. Thank God कि कुछ नहीं हुआ. The mouths rolled on and Bruno had
grown many times the size he was when he came. अब slowly उसका जो size था वो बढ़ता गया. Last वो एक bear है, एक वाइल्ड एनिमल है, तो उसका साइज तो बड़ा होगा ही. ही हैड इक्वल टू एस्लिन द हाइट एंड हैड इवन आउटग्रोन देम. सो वो एस्लिन जो डॉग्स थे उनके हाइट के जितना हो गया था, उनके साथ ही बढ़ रहा था. वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल. ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ चेंजेस आ गया, कि उसका हाइट बढ़ गया है, उसका हेल्थ बढ़ गया है. नो, वो बिल्कुल सेम था. वो बहुत मिस्चीवियस था, बहुत जॉयफुल था, बहुत प्लेफुल था. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल. और सबसे बड़ी बात थी कि वो सबको पसंद था. अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू. वो उसकी वाइफ को पसंद करता था और वाइफ भी उसको बहुत पसंद करती थी, ब्रूनो को. शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाई स्मॉल बॉय. सो उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया. ब्रूनो से उसकी वाइफ ने क्या रख दिया, उसका नाम बाबा रख दिया. इट वॉज अ हिंदुस्तानी वर्ड जो किसको सिग्निफाई करता है, स्मॉल बॉय. इट मीन्स अ स्मॉल बॉय. बाबा मीन्स स्मॉल बॉय. एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू. और वो बहुत मिस्चीवियस था, तो बहुत कुछ ट्रिक्स करता था. लाइक at the command Baba wrestler or a Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a laugh and tumble. Tumble means fall. So जैसे उसको कोई बाबा रेसलर या बाबा बॉक्स कहता, तो कुछ ना कुछ चीज़ को ऐसे रेसलिंग की तरह करता, टम्बल करता, गिरा देता, ना शो करता था, अपनी ट्रिक्स यूज करता था. गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट हिम. उसको एक स्टिक दे दो, और जब उसको बोलते थे कि बाबा जस्ट होल्ड द गन, तो वो स्टिक को एज अ गन यूज करके, कंसिडर करके गन को, और ऐसे रखता और शूट करने के उस पर, मतलब गन के जैसे मूवमेंट रखता था कि गन को कैसे, अगर गन हो तो कैसे रखा जाए. So ask him, Baba, where's the baby? So whenever somebody asked him कि Baba, where's the baby, and he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed hidden in a straw bed. So क्या करता था, उसके एक बैड में एक स्टिक रखी थी, और when somebody asked him where's the baby Baba, so he just hold the stick like this and crawl that stick like a बेबी. सो बट बिकॉज ऑफ द टीनेज चिल्ड्रन, जब उसके आसपास के जो चिल्ड्रंस थे, ऑथर के आसपास के चिल्ड्रन थे, पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंज मोस्ट ऑफ द टाइम. तो बच्चों के लिए कि डेंजर ना हो, क्योंकि जो ब्रूनो था, जो स्लॉथ बियर था, वो अब काफ़ी बड़ा हो गया था, तो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम चेन्स में बांध कर रखा जाता था, जस्ट फॉर द सेफ्टी. Then my son and I, so I means author, advised my wife and friends advised her too to give Baba to a zoo at Mysore. So अब ऑथर के बच्चों ने और ऑथर के फ्रेंड्स ने उनकी वाइफ को और उसको एडवाइस किया कि देखो बाबा जो है, जो ब्रूनो है, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो उसको कहाँ रखना चाहिए, उसको मैसूर के जू में रखना चाहिए. इट वॉज अ बेस्ट प्लेस फॉर हिम. सो ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, बिकॉज वो काफ़ी बड़ा था घर में रखने के लिए. वो देखो वाइल्ड एनिमल्स को घर पे रखना, इट्स नॉट अ वेरी सेफ थिंग. सो आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड. काफ़ी समझाने के बाद वो एट लास्ट वो मान गई थी, बिकॉज वो बहुत लव करती थी ब्रूनो को. हैजली एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, अ लेटर वॉज रिटन टू द क्रिएटर ऑफ द जू. क्रिएटर हेयर द पर्सन इन चार्ज ऑफ द जू. क्रिएटर यहाँ पे कौन है, जो पर्सन जो जू को संभालते हैं. सो उन्होंने फटाफट से एक डिसीजन लिया कि बिफोर कि जो ऑथर वाइफ है अपना डिसीजन चेंज करें, उन्होंने क्रिएटर को कॉल किया, जो जू के क्रिएटर थे. एक लेटर रिटर्न किया, सॉरी कॉल नहीं. डिड ही वॉन्ट अ टैम बियर फॉर हिज कलेक्शन. सो ही आस्क्ड देम कि क्या उन्हें अपने कलेक्शन में टैम बियर चाहिए, एक पेट बियर चाहिए. He replied yes. The zoo sent a case from Mysore in a lorry. एक ठेले पे उन्होंने क्या, लॉरी में से एक ठेले पे उन्होंने एक केस भेजा जू से. एंड अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, 87 माइल्स पे डिस्टेंस पे बाबा को पैक करके जू में भेज दिया गया. सो इस तरीके से बाबा की अब जो जर्नी होगी, मीन्स इन आ नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द लाइफ स्टाइल ऑफ इन द जू ऑफ बाबा, कि बाबा की लाइफस्टाइल क्या थी जू में. तो with this we come to an end of the part second. I hope you all have must understood this part very well. So we will continue it in our next video, in our next part. Thank you for watching this video.